Good morning, students. Today we are going to start a new topic called Boolean algebra. Since few of you were having problem in this topic, so I decided to clear it up. So let's start Boolean algebra. So the things that we are going to learn in this session, I have enlisted them. These are the basic terminology of Boolean algebra, Boolean operators, truth tables and different logic gates, and in the last we will discuss De Morgan's law. So let's start Boolean algebra. So before starting Boolean algebra, I want you to understand that what algebra actually is. मैथ्स में आप लोगों ने algebra word सुना होगा. What is algebra? In mathematics, algebra means a branch of mathematics which deals with unknown variables. जहाँ पर हम unknown variables के साथ डील करते हैं और उन unknown जो चीज़ें होती हैं उनकी जगह हम variables यूज़ करते हैं x, y, z and we form equation and then we solve them. So that branch of mathematics is called algebra. Now here we don't have algebra, we have Boolean algebra. Now what is a Boolean algebra? भाई Boolean word का मतलब होता है either true or false, और Boolean means two values, only two values. So यहाँ पर हम एक ऐसे algebra से डील कर रहे हैं जिसमें कि हम वो वेरिएबल लेंगे जिनकी वैल्यू either 0 होगी या फिर 1 होगी. They cannot take any values. Their values are restricted to 0 or 1. So that is called a Boolean algebra. That is called Boolean algebra, and that variable is called a binary variable because it is taking only two values, either 0 or 1. So we can say that this Boolean algebra deals with the study of only binary variables which take binary values 0 and 1. And these binary values 0 and 1, these are called Boolean constants. Okay. Now we have to understand that what is a Boolean expression. Any meaningful combination of Boolean variables and Boolean operators is called a Boolean expression. Now you can ask, sir, what are Boolean operators? Now Boolean operators are the operators similar to the operators which you use in maths. Maths में आप जहाँ प्लस माइनस डिवाइड फैक्टोरियल और न जाने कितने ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हो, यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं in this Boolean algebra, but those operators are very simple. So we are going to discuss only three of them here right now, और वो हैं and, और not. ये क्या करते हैं ये हम आगे देखेंगे, but these are operators similar to the operators like plus, minus, divide in maths. और Boolean operators और Boolean variables का कोई भी एक combination को हम Boolean expression कहते हैं. Now what is a Boolean statement? Any statement which can give either 0 or 1 output is called a Boolean statement. जैसे for example, क्या कल स्कूल है? अगर इसका आंसर हम दें तो इट माइट बी यस और नो. तो ये जो स्टेटमेंट है कि क्या कल स्कूल है, इनफैक्ट क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है ये एक बूलियन स्टेटमेंट होगा जिसका कि आंसर यस या नो होगा. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या कल बारिश हुई थी, तो इसका आंसर यस या नो होगा. भाई हुई थी तो यस, नहीं हुई थी तो no. So such kind of statements are called Boolean statement. I hope this Boolean statement, Boolean expression and Boolean constant and binary variable, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी. तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि Boolean ऑपरेटर्स यहाँ पर हम करेंगे डिस्कस and और not. अभी हम करते हैं डिस्कस and को. Now before discussing this and, I want to make you understand that what is this. ये यहाँ पर जो हमने बनाया है ये क्या है बच्चों? इसको हम कहते हैं एक ट्रूथ टेबल, और इसमें हम बूलियन वेरिएबल्स को रखते हैं और फिर हम उन बूलियन वेरिएबल्स के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि ऑपरेटर लगा के आते हैं
उनको भी यहाँ पर हम रखते हैं. नाउ दिस टेबल इट कंटेन्स A and B boolean variables and these are the possible values जो कि ये दो boolean variable ले सकते हैं 0 0 0 1 1 0 and 1. इसके अलावा ये और कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते. तो यहाँ से हम ये जान सकते हैं कि अगर दो वेरिएबल हैं तो हम पे केवल 4 ही रो हो सकती हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. अगर 3 वेरिएबल होते सपोज A, B और C, तो हम पे यहाँ पर 8 रो होती. तो जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है दैट इज 2 raised to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ वेरिएबल. अगर 2 वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 4, अगर 3 है तो 2 की पावर 3 8 होते. बट यहाँ पर हम केवल 2 ही ले रहे हैं वेरिएबल A और B, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इसको 2 की पावर 2 मतलब 4 रोज होंगे केवल. इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. नाउ दिस आउटपुट, ये आपका जो आउटपुट है ये A डॉट B, यहाँ पर हम डॉट को एंड कह रहे हैं, एंड ऑपरेटर को यहाँ पर हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो बच्चों एंड ऑपरेटर क्या होता है कि एंड ऑपरेटर आउटपुट 1 तभी देगा जब इनपुट दोनों के दोनों या सारे इनपुट 1 होंगे. अगर एक भी इनपुट 1 नहीं है तो आपका आउटपुट 0 आएगा. ठीक है, तो एक ऐसा ऑपरेटर जो आउटपुट केवल 1 तब देता है कि जब सारे इनपुट वेरिएबल्स की वैल्यू 1 हो, ऐसे ऑपरेटर को एंड ऑपरेटर कहते हैं. तो यहाँ पर देखिए सारे 0 हैं क्योंकि बाकी जो वैल्यूज़ हैं A और B की उनमें से कोई ना कोई एक 0 होगा, तो इसलिए ये 0 है. एंड ऑपरेटर विल गिव वन ओनली इफ द आउटपुट्स आर द इनपुट्स आर 1. इन जो सारे वेरिएबल्स हैं उनके सारे इनपुट क्या है 1 है. आई थिंक दिस एंड operator is clear to you now. Now another operator that we are going to discuss is OR operator. Now this OR operator, what it does the reverse of AND operator. जहाँ पर AND operator output 1 तब दे रहा था कि जब सारे input 1 हो, वहीं पर OR operator जो है आपका, जो कि हम प्लस साइन से करते हैं इसको डिनोट, वो आउटपुट 1 तब देगा जब कोई भी एक इनपुट 1 हो. जैसे कि यहाँ पर देखो B1 है, यहाँ पर A1 है, यहाँ पर दोनों ही 1 हो गए, तो ये आउटपुट 1 हो गई, क्योंकि कोई भी एक अगर 1 हो तो ये 1 हो जाएगा. तो सच ऑपरेटर विच गिव्स 1 व्हेन आइदर ऑफ द इनपुट इज 1 इज कॉल्ड अ OR ऑपरेटर. और अगर सारे ही इनपुट 0 हैं तो वो फिर 0 देगा. सो यू कैन कंपेयर इट विद एंड. ये देखिए एंड में 3 0 हैं, एक 1 है, और OR में 3 1 है और एक 0 है. So I hope this OR operator is very clear. Now the next operator is NOT operator. As the name suggests, NOT operator क्या करेगा कि जो वैल्यू होगी बूलियन वेरिएबल की उसका नॉट कर देगा. अब आपको मालूम है कि जो बूलियन वेरिएबल है इट कैन ओनली टेक 0 और 1. तो 0 का नॉट या 0 का नॉट क्या होगा 1 होगा और 1 का नॉट क्या होगा 0 होगा. सो दिस इज नॉट ऑपरेटर. इट्स वेरी सिंपल. So moving ahead, now this truth table, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ट्रुथ टेबल जो होती है, इस ट्रुथ टेबल जो हमने अभी की डिस्कस, एक टेबल होती है जो कि ऊपर में बूलियन वेरिएबल्स को यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर हम ऑल पॉसिबल जो उनके इनपुट्स हैं उनको रखते हैं, और उसके बाद हम उनके जो आउटपुट हैं उनको हम आगे रखते हैं. जैसे यहाँ पर ये डैश है, ये है मतलब नॉट, y का नॉट, ये y हो गया तो ये y का नॉट ये हो गया. तो देखो y 0 है तो 1, यहाँ पर y1 हो, y डैश 1 हो गया, y 1 है तो 0 हो गया, एंड सो ऑन. यहाँ पर हमने y और y डैश का और करा दिया, प्लस मतलब यहाँ पर और है, ध्यान रखना इसको. तो y डैश ये रहा और y ये रहा, तो इसका और करा दिया, ये आ गया. तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर y प्लस y डैश मतलब ये कॉलम जो हो गया, और x का यहाँ पर हमने एंड करा दिया. जहाँ पर कोई ऑपरेटर ना हो और यहाँ पर आपको लगे कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम समझिए वो आपका एंड है. यहाँ पर ये एंड है, यहाँ पर डॉट होना चाहिए था, बट कई बुक्स में यहाँ पर डॉट नहीं होता, तो आपको उसको भी एंड मानना है. एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन इन मैथ्स, उस टाइप का. तो ये इसका और इस x का एंड है, 1 and 0
0। देखो एंड में क्या होता है, एंड में कोई भी अगर एक 0 तो वो 0 हो जाएगा, और 1 कब होगा, जब सारे 1 होंगे। तो ये देखिए ये 1 है और ये भी आपका 1 है, तो इसलिए ये 1 और 1 1, क्योंकि ये x और y प्लस वाई डैश का एंड है इसलिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रुथ टेबल किसे कहते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लॉजिक गेट्स। नाउ ये लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? These are nothing but the symbolic representation of the operators that we have discussed earlier। जैसे आपको मालूम है कि नॉट क्या करता है, नॉट बूलियन वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो अगर ए है तो उसका आउटपुट क्या होगा, ए नॉट होगा। यहाँ पर जेड का मतलब है आउटपुट। तो यहाँ पर अगर आप इसको ना भी मानो तो भी चलेगा, आप ये समझो कि ए है और आउटपुट क्या है, ए नॉट। ए है तो उसका उल्टा ए नॉट। और ये है सिंबल आपका नॉट गेट का, ये सिंबल आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज जस्ट अ सिंबल, इसका ऐसा एज सच कोई यूज नहीं है सिंबल का, बस केवल समझने के लिए। नाउ नेक्स्ट, ये आपका एंड गेट का सिंबल है, अ काइंड ऑफ डी, जिसमें कि 2 इनपुट आ रहे हैं और आउटपुट आपका ए डॉट बी। ये टेबल आप पीछे भी देख चुके हो ए डॉट बी की। सो दिस इज कॉल्ड एंड गेट। नाउ दिस और गेट, और गेट का सिंबल आप देख लीजिए, दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट। और गेट में 1 तभी आएगा जब कोई भी एक इनपुट एक्स वाई में से कोई भी एक इनपुट क्या होगा, 1 होगा, तो ये आपका आउटपुट 1 आएगा। और जब दोनों 0 हो जाएंगे तो आपका आउटपुट 0 होगा। तो दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट। नाउ NAND गेट। नाउ NAND गेट इज नथिंग बट जस्ट द नॉट ऑफ एंड। तो आपको पता था कि ऑन एंड गेट का जो सिंबल है वो डी टाइप में था, तो NAND गेट का सिंबल केवल यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने गोला लगा दिया है, यहाँ पर ये गोला, तो ये आपका NAND गेट का सिंबल हो गया। तो NAND गेट बहुत ही आसान है, सिंपल ए डॉट बी होता है एंड, तो ए और बी ये लिया हमने, तो ये आ गया इसका एंड, और इसका आप नॉट कर दीजिए तो ये आ गया आपका NAND, नॉट ऑफ एंड। तो नॉट के लिए यहाँ पर इन्होंने डैश सिंबल डैश लगाया है ए डॉट बी के ऊपर, तो ये हो गया आपका NAND गेट। यहाँ पर NAND गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, क्योंकि इस NAND गेट की हेल्प से हम बाकी सारे गेट्स एंड और नॉट उनको क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, ये हम कभी बाद में देखेंगे, बट आप ये समझिए कि इसको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं बिकॉज विद द हेल्प ऑफ NAND गेट वी कैन क्रिएट एनी अदर गेट। नाउ नेक्स्ट, NOR गेट अगेन, और का अगर हम नॉट कर दें सो दैट इज कॉल्ड NOR गेट। और सिंबल आपको ये ध्यान रखना है कि और की तरह ही सिंबल है, बस यहाँ पर एक इन्होंने यहाँ पर एक गोला लगा दिया है, तो ये NOR बन गया। पहले आप और निकालिए और उसका नॉट कर दीजिए, सो दिस विल बी NOR गेट। अगेन NOR इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि NOR एंड NAND आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। और अगर इसका रीजन पूछते हैं व्हाई, सो यू हैव टू टेल बिकॉज विद द हेल्प ऑफ NOR एंड NAND गेट वी कैन क्रिएट एनी अदर लॉजिकल गेट्स, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड NOR एंड NAND गेट एज यूनिवर्सल गेट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नाउ XOR, इससे पहले आपने पढ़ा NOR, और यहाँ पर आपके सामने एक नया गेट है, इसे कहते हैं XOR गेट। अब ये XOR गेट क्या होता है, देखिए भाई, XOR गेट का मतलब होता है कि आपका ये, आप पहले यहाँ देख लीजिए, ये है आपका इनपुट A एंड B और ये है आपका XOR गेट। बाकी और चीज़ पे आप ध्यान मत दीजिए, फिलहाल इस पे ध्यान दीजिए। ये इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, दैट इज XOR गेट। तो बेटा XOR गेट को आप ऐसे समझिए कि XOR गेट में 1 तब आता है जब नंबर ऑफ वंस इन द इनपुट ऑड हो, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे कि A और B, तो A और B में कोई भी मतलब 1 यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 0 है। यहाँ पर नंबर ऑफ 1 0 है, तो 0 इवन है, तो यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ 1 कितने हैं इसमें, A और B में केवल एक ही 1 है, तो नंबर ऑफ 1 ऑड है, तो आउटपुट 1 आ गया। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ 1 कितने हैं A और B में, केवल एक ही 1 है, तो इसका मतलब ये ऑड है, तो आउटपुट 1 आ गया। यहाँ देखिए 1 और 1 दोनों 1 है, मतलब नंबर ऑफ 1 कितने हैं, इवन है,
2 हैं तो आपका आउटपुट क्या आ गया 0। तो आपको ये बहुत ही आसान है, आप इनमें ध्यान मत दीजिए। अभी आप केवल ये समझिए कि एक्सॉर गेट में आउटपुट 1 तभी आता है जब इनपुट में नंबर ऑफ 1 ऑड हो। अगर आप नंबर ऑफ 1 इवन होंगे तो वो आउटपुट आपका 0 आएगा। अभी तो बच्चों हम यहाँ पर केवल 2 वेरिएबल ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पर 3 चाहे ए बी सी डी ई लेते तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर ही समझ में आता कि उन ए बी सी डी में अगर नंबर ऑफ वंस ऑड होते तो आउटपुट उसका 1 आता और इवन होते तो आउटपुट 0 आता। सो दैट इज कॉल्ड एक्सॉर गेट। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम कहती है कि अगर हम 2 वेरिएबल को ऐड कर दें और उसका नॉट कर दें, ये यहाँ पर जो है सिंबल, ये नॉट का सिंबल है। अगर हम 2 वेरिएबल को ऐड करें, ऐड मतलब यहाँ पर और करें और उसका नॉट कर दें, सो दैट विल बी इक्वल टू नॉट ऑफ ए एंड नॉट ऑफ बी, उनका एंड। तो यहाँ पर सिंपल प्लस की जगह डॉट लग गया और दोनों वेरिएबल में आपका नॉट लग गया है। सो दिस इज डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ कहता है कि अगर यहाँ डॉट होगा, ए डॉट बी है, उसका अगर आप नॉट कर दो तो वो इंडिविजुअल्स का नॉट होगा और यहाँ पर ये डॉट की जगह प्लस हो जाएगा। इसी चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। वहाँ पर हमने नॉट का जो सिंबल है वो ये जो टिल्ड था इससे दिखाया था, यहाँ पर हम इस बार से दिखा रहे हैं, पर बात एक ही है। ए डॉट बी का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ, दिस इज द फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ। और यहाँ पर ए प्लस बी का बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। यहाँ पर ये नहीं है, ये यहाँ पर कॉमा कुछ नहीं है, जस्ट ए प्लस बी बार इक्वल टू ए बार प्लस डॉट ए बार डॉट बी बार। ये दोनों सेम ही है, अलग अलग वे हैं लिखने के दोनों को। ये 2 नियम है, ये भी वही 2 नियम है। सो आई होप आपको अब ये बूलियन अलजेब्रा समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है, ही और शी कैन आस्क मी अबाउट एनीथिंग जो आपने अभी यहाँ पढ़ा है। यहाँ पर हमने ट्रुथ टेबल की हेल्प से फर्स्ट जो डी मॉर्गन्स लॉ है उसको प्रूफ करने की कोशिश की है। वही ए प्लस बी का हमने नॉट ले लिया तो ये आ गया, और नॉट ए और नॉट बी का एंड कर दिया। ये है नॉट ए, ये है नॉट बी, इसका हमने एंड कर दिया। तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो ये देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो हमने with the help of truth table we have proved the first De Morgan's theorem and similarly यहाँ पर हमने second De Morgan's theorem प्रूव कर दिए। ए बी का नॉट ले लिया है और ए नॉट प्लस बी नॉट का और कर दिया है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल वी कैन प्रूव सर्टेन बुलियन एक्सप्रेशंस। हम बुलियन स्टेटमेंट्स या ये जो बुलियन आपके एक्सप्रेशंस हैं हम उनको प्रूव कर सकते हैं ट्रूथ टेबल की हेल्प से। ये इनका एक यूज़ है, एक इस्तेमाल है, इसीलिए ट्रूथ टेबल्स इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और किसी को कोई भी डाउट हो, ही और शी कैन आस्क मी इन द ग्रुप। फॉर नाउ, थैंक यू।